leukocytes. In this I told you कि how they are classified, और उसमें मैंने आपको बताया कि morphologically they are classified as granulocytes and agranulocytes, and in granulocytes neutrophils, eosinophils and basophils come, and by the term granulocytes mean that these cells have granules in their cytoplasm. Plus, I also told you that eosinophils take acidic dye and therefore on the slide they appear pink, while the basic stain is taken by the basophils, and the basophils they are stained purplish. Regarding the neutrophils, I told you कि ये neutral हैं, they don't take any stain, so they appear pale. Then I told you about the agranulocytes, in which I told you that these are the two agranulocytes, the monocytes and lymphocytes. And the monocytes. And then the immunocytes, which are lymphocytes. We are also going to study lymphocytes in detail, especially related to immunity, and you are going to see that how they act specifically against specific agents. और मैंने आपको यहाँ पे ये भी बताया कि न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, दे प्ले मेजर रोल इन नेचुरल इम्यूनिटी. हमारी एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है. और lymphocytes, they act against, they act for acquired immunity, they act against specific substances. फॉर एग्जाम्पल कोई डस्ट पार्टिकल आ गया, फॉर एग्जाम्पल कोई खास वायरस आ गया, कोई खास बैक्टीरिया आ गया, तो दिस इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. और ये भी मैंने आपको बताया कि these terms, the natural immunity and the acquired immunity, they are the overlapping terms. ऐसा कुछ नहीं होता कि सब कुछ अलग अलग हो रहा हो. ये एकेडमिक पर्पसेस के लिए इसको इस तरह डिवाइड किया जाता है. और जब हम इम्यूनिटी देखेंगे तो यू विल सी कि न्यूट्रोफिल्स भी मदद कर रहे हैं लिम्फोसाइट्स को, लिम्फोसाइट्स भी मदद कर रहे हैं इयोसिनोफिल्स को. तो जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर होता है, आवर होल बॉडी starts trying to remove it because it is foreign to the body. So this was their functional classification, that is immunocytes and phagocytes. Then, yes, on this slide we are discussing okay, what are the normal percentages of different WBCs, and I told you that this slide is from Guyton, or इसमें you are seeing that the most numerous cells, they are the neutrophils, and on second these are the lymphocytes. Neutrophils and lymphocytes, they have 62%, 30%, that means 92% के करीब तो ये cells हैं normally. और बाकी cells eosinophils हैं, basophils हैं और monocytes. और मैंने आपको थोड़ा सा ये भी बताया कि आप लोग अपना डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट करेंगे, जिसमें आप इसको काउंट करने की कोशिश करेंगे 100 सेल्स को, और जितने आपको सेल्स मिलेंगे तो उसको आप अपनी परसेंटेज कर देंगे.
Here I was telling you that these cells, the granulocytes, are known as polymorph nuclear. Polymorph nuclear. Polymorph nuclear. That means their nuclei have different morphology. Poly means multiple, morpho means morphology, उसकी शक्ल, और nuclear means nucleus. यानी कि इनके न्यूक्लियाई जो हैं तीनों के डिफरेंट होते हैं. और आप को मैं आगे जाके पिक्चर भी दिखाऊंगी. न्यूट्रोफिल्स आर multilobe, eosinophils are bilobed, and basophils have one big kidney-shaped, indented at one side nucleus. तो इसलिए इनको ये कहते हैं. और फिर उस वक्त मैं आप लोगों को जब ये समझा रही थी तो जूम मीटिंग एंड हो गई. मैंने आपको ये बताया कि क्लिनिकल साइड पे आपसे कोई आता है कोई पेट खराब के साथ या अपेंडिक्स के साथ, अपेंडिसाइटिस के साथ, तो कई फायदे होता है. तो आप इंशाल्लाह आपसे पूछ जाएगा कि ओके ये इसके साथ आया है, इसके पॉलीज कितने हैं. तो पॉलीज का उधर ये मतलब होता है न्यूट्रोफिल्स. इस वजह से कि आप इन तीनों में देखें क्या ये दोनों इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स इतने ज्यादा हैं कि इनको कंसिडर किया जाए इफ दे आर नॉर्मल. तो मेन सेल्स आर न्यूट्रोफिल्स. तो जब कभी आप इंशाल्लाह ताला हाउस जॉब करेंगे या कुछ करेंगे तो आपसे कहा जाएगा इसके पॉलीज कितने हैं, तो उनका ये मतलब होता है कि ये न्यूट्रोफिल्स का पूछ रहे हैं. क्योंकि इफ दे आर एक्सपेक्टिंग दैट देयर इज acute bacterial infection, then these polys should be very high. That's why it is said polys कितने हैं. हाँ, अगर उनको eosinophils ज्यादा हैं, कोई एलर्जी के साथ आया है 15-20% है, तो फिर इसकी सिग्निफिकेंट अमाउंट होगी. लेकिन आम जो एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है जिसमें आपका गला खराब हो जाता है, तो उसमें पॉलीज हाई होते हैं. और उस वक्त हम पॉलीज का मतलब न्यूट्रोफिल लेते हैं. इसमें मैं आपको यही समझाने की उस वक्त कोशिश कर रही थी कि जिस तरह पॉलीसाइथीमिया वीरा है, और मैंने आपको पॉलीसाइथीमिया वीरा के बारे में बताया कि इट इज अ ट्यूमरस कंडीशन ऑफ द बोन मैरो इन विच ऑल द सेल्स दैट इज RBCs, WBCs and platelets are increased. I told you that. लेकिन हम उसको पॉलीसाइथीमिया वीरा लेते हैं, हम उसको आरबीसी का नंबर लेते हैं कि आरबीसी बहुत 11 मिलियन तक चले जाते हैं. इसलिए कि नॉर्मली भी हमारे जो आरबीसीज हैं दे आर इन मिलियंस, platelets are in lakhs per cubic millimeter, and the WBCs are maximum 11,000 per cubic millimeter. तो हमारा मेन जंक जो है वो आरबीसी है. तो दैट इज वाई हम उसको उसमें कंसिडर करते हैं. इसी तरह जब मैंने आपको हेमाटोक्रिट बताया तो मैंने आपको बताया कि हेमाटोक्रिट इज द परसेंटेज ऑफ ब्लड दैट इज सेल्स. लेकिन अगर आपको वो फिगर याद हो तो ज्यादा तो सारा आरबीसीज है, ऊपर जो बफी कोट है वो ना होने के बराबर है. तो उसको तो फिर कंसिडर ही नहीं किया जाता, जो एक तरह से नॉन एग्जिस्टेंट है. तो हम हेमाटोक्रिट में आरबीसी देखते हैं एंड वी टेल. तो इसी तरह जब आपसे कोई पूछे इसके पॉलीज कितने, हाँ एकेडमिकली पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स है, पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर इओसिनोफिल्स है, पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर बेसोफिल्स है. लेकिन अगर कोई आपसे स्पेसिफिकली पूछता है इसके पॉलीज कितने हैं, तो उसका मतलब होता है कि इसके न्यूट्रोफिल्स कितने हैं. उस दिन एक बच्ची को ये बात समझ नहीं आई थी, अब आ गई है. बेटा आ गई है समझ? आप लोग सो रहे या आवाज नहीं आ रही? मैम आवाज आ रही है. आवाज आ रही है. अच्छा, वो नींद में हो है? नो नो मैम. नो मैम जाग गए. अच्छा चलो अच्छी बात है. अच्छा तो शुक्र है कोई बच्चियां तो फिर बोल देती हैं, वो लड़के तो सुमुन बुकमुन मुझे लगता है स्टार्ट करते हैं और सो जाते हैं. यही बहुत बड़ा मसला है हमारे ऑनलाइन क्लासेस का.
अच्छा, आप बात समझ आ गई आपको इस स्लाइड की जो मैं उस दिन समझाना चाह रही Yes, थी? ma'am. Yes, ma'am. चुप एक लड़का भी बोला, उसने कहा भी मैं भी हाजिरी दे दूं। क्या नाम है बेटा आपका? नाम असद। असद, पूरा नाम क्या है? असद इकबाल। असद इकबाल। कहाँ के रहने वाले हो बच्चे? मैम खारियां। खारियां के हो? अच्छा, क्या हाल है खारियां का? लॉकडाउन है, वो सड़कें तो बंद थी, सुना जगह फसाद हो रहा था 2 दिन से। मैं तो इस्लामाबाद में ही हूँ अभी, लेकिन मुझे वहाँ वैसे काफी हालात खराब। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस्लामाबाद में क्यों हो तुम? घर है इधर? मैम यहाँ पे एक घर है हमारा, वहाँ पे रह रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, चलो शुक्र है एक लड़का असद तो बोला कुछ। अच्छा, ये साइट तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, जो ल्यूकोसाइट्स हैं इनकी नॉर्मल रेंज क्या है? अभी मैंने आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट नॉर्मल रेंज मस्ट बी 11,000 per cubic millimeter. The range is 4,000 to 11,000 per cubic millimeter. Now बेटा, एक चीज बहुत एनॉय करती है टीचर्स को, स्पेशली फिजियोलॉजी में, जब हम आप लोगों से कुछ वैल्यूज पूछते हैं तो क्या होता है कि आप लोग 4,000 तो 11,000 तो याद कर लेते हैं, लेकिन उसका आगे ये नहीं याद करते पर क्यूबिक मिलीमीटर, पर 100 ml, पर किलोग्राम, पर मिलीग्राम। तो प्लीज आप लोग ना, जब भी आपसे हीमोग्लोबिन पूछो 14, भाई क्या जी ग्राम, क्या डेसीलीटर, लीटर, किलो, क्या मतलब हमें नहीं समझ। तो वो आप लोगों को ना बच्चे, और अभी से आदत डालें कि वैल्यूज को यूनिट्स के साथ याद करें। तो जिस तरह आरबीसीज से 4.8 to 5.2 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर है। अब दूसरी बात, अब मैं 4.8 to 5.2 कह रही हूँ, तो आपको कहीं 5.3 मिल जाएगा, कहीं 4 to 5 मिल जाएगा। तो ये सब करीब करीब है, और मतलब इसको इस तरह याद करने में, अपने लिए इजी बना के याद करने में कोई हर्ज नहीं। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि ल्यूकोसाइट्स कितने हैं नॉर्मली, आप कहेंगे 7,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, वो कहेंगे जी आप रेंज बताएं, 4,000 to 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। इट्स इजी। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके आप लोग ये वैल्यूज खुद भी अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। देन द टर्म कम्स ल्यूकोसाइटोसिस। आप यकीन करें कि ल्यूकोसाइटोसिस कितनी आसान चीज है, इंक्रीज WBC काउंट इन ब्लड। इस दफा जो मैंने वाइवा लिया एंड आई आस्क्ड, अब मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ व्हाट डू यू मीन बाय ल्यूकोसाइटोसिस, तो आपको सिर्फ यही कहना है इंक्रीज WBC काउंट इन ब्लड। मैंने कितना इंक्रीज हो जाएगा बेटा जी? 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर से ऊपर हो जाएगा, ये जवाब है। और मुझे बताया गया ल्यूकोसाइटोसिस का डिक्रीज नंबर, ल्यूकोपीनिया का इंक्रीज नंबर, ल्यूकोपीनिया का ल्यूकीमिया। मतलब आप लोग जब वाइवे में आते हैं ना, तो मेन बिल्कुल हम लोग वाइवे में कम से कम, आई एम टेलिंग यू अबाउट द फिजियोलॉजी, वी जस्ट आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस, दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। लेकिन आप लोग पता नहीं इतने प्रेशराइज्ड होते हैं, क्या कंफ्यूजन होता है। ऑलवेज रिमेंबर साइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस या ल्यूकोपीनिया, पीनिया रिड्यूस, साइटोसिस इंक्रीज्ड। इओसिनोपीनिया क्या मतलब होगा? Eosinophils, good. Eosinophilia, increased eosinophils. बात समझ आई? बेसोफिलिया, increased, philia means love, basophilia, increased basophils, basopenia, decreased basophils. आपने, लेकिन वही मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहती, लेकिन बेसोफिल्स वैसे ही इतने कम होते हैं कि वो उनका पीनिया कम ही होता है, फिलिया ही ज्यादा आता है। तो ल्यूकोसाइटोसिस इज इंक्रीज white blood cell in the blood, that is more than
11,000 per cubic millimeter, and leukopenia means reduced WC count in the blood that is less than 4,000 per cubic millimeter. Is it clear? Then the term comes, ये आप लोग अपने सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, ल्यूकीमिया. ल्यूकीमिया में भी there is increased number of white blood cells, but these are abnormal white blood cells. They are not normal. अगर मैं यहाँ पे आपको कहती हूँ कि किसी को न्यूट्रोफिलिया है, तो इसका मतलब है कि उसके 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर से ल्यूकोसाइटोसिस है, तो मेरा मतलब ये होगा कि उसका 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर से वैल्यू ज्यादा है. ठीक है, लेकिन ये सारे नॉर्मल शक्ल के होंगे, बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहे होंगे, इनकी शक्ल भी नॉर्मल होगी और सब कुछ ठीक होगा. लेकिन ल्यूकीमिया जो है, ये ना सिर्फ नंबर इंक्रीज होता है, बल्कि नंबर ऑफ एबनॉर्मल WBCs इन सर्कुलेटिंग इज इंक्रीज. जब आप ब्लड की फिल्म बनाते हैं, आपको व्हाइट ब्लड सेल्स अजीबोगरीब शेप के नजर आते हैं. ना सिर्फ नंबर इंक्रीज होता है, बल्कि एबनॉर्मल WBCs. अब ये डायरेक्टली वायरल में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ल्यूकोसाइटोसिस एंड ल्यूकीमिया. तो ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकीमिया में क्या फर्क है, तो आप यही बताएंगे, ल्यूकोसाइटोसिस इज इंक्रीज नंबर ऑफ WBCs मोर देन 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर इन द ब्लड, और जबकि ल्यूकीमिया इज आल्सो इंक्रीज नंबर ऑफ एबनॉर्मल WBCs. नंबर इसमें भी इंक्रीज होगा, लेकिन WBCs एबनॉर्मल शक्ल के आपको स्लाइड्स पे माइक्रोस्कोप के अंदर नजर आएंगे. ये दो तरह का होता है. ये आप लोग सच्ची बात है सेकेंड ईयर में ज्यादा पढ़ेंगे. यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को मैं थोड़ा सा समझा बता रही हूँ, कोई पूछ ले. एक होता है माइलोजेनस ल्यूकीमिया जो और दूसरा होता है लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया. माइलोजेनस में आपका आ जाता है वो ल्यूकीमिया जो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स या मोनोसाइट को सेल्स को एबनॉर्मल करता है. और लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया एज द नेम इंडिकेट्स कि ये लिम्फोसाइट्स का ल्यूकीमिया है, तो लिम्फोसाइट्स एबनॉर्मल हो जाते हैं. और ल्यूकीमिया जिसको आप आम ज़बान में ब्लड कैंसर कहते हैं जी, उसको ब्लड कैंसर है. इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, यू ऑल नो के क्या इफेक्ट्स होते हैं किसी भी कैंसर के, उसी तरह ये ब्लड कैंसर के भी वही इफेक्ट होते हैं. एक होता है मेटास्टेटिक ग्रोथ. मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि एक तो ल्यूकीमिया है, तो ल्यूकीमिया का मतलब है कि वो बोन मैरो ब्लड का मसला है. उसके बाद एबनॉर्मल सेल्स डिफरेंट ऑर्गन्स में चले जाते हैं. ये एबनॉर्मल सेल्स डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं. इसको हम कहते हैं जी मेटास्टेसिस हो गया, यानी कि इसकी ग्रोथ हो गई है, इसकी डेवलपमेंट हो गई है, इसका स्प्रेड हो गया. दैट इज नोन एज मेटास्टेटिक ग्रोथ. तो आपने सुना होगा कि जी किसी को लंग कैंसर था, वो बोन्स में भी चला गया. तो दैट इज मेटा. दिस इज इन द मेडिकल टर्मिनोलॉजी इट इज नोन एज मेटास्टेसिस. देन अगर ये ग्रोथ बोन्स में चली जाए तो पेन होगा, फ्रैक्चर्स इजी हो जाएंगे. इट कैन स्प्रेड टू एनी ऑर्गन. अच्छा, जब आपके ये स्प्रेड कर जाएगा, आप मुझे खुद बताइए कि इन्फेक्शन बहुत होंगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया कि व्हाइट ब्लड सेल्स दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग द फॉरेन इन्वेडर्स. तो जब व्हाइट ब्लड सेल्स एबनॉर्मल हो जाएंगे तो वो अपना काम तो सही नहीं कर सकेंगे. एबनॉर्मल चीज तो एबनॉर्मल होती है. तो इन लोगों में इन्फेक्शंस बहुत होती हैं, और इनकी इन्फेक्शंस जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, इनकी इन्फेक्शंस लीथल होती हैं, बहुत ज्यादा लीथल होती हैं, क्योंकि वो मामूली सी भी इन्फेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ white blood cells. Then there is severe anemia, क्योंकि सारे white blood cells बोन मैरो को
इन्वेड कर देते हैं तो बाकी रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स तो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी भी कई दफा हो जाती है। इसके अलावा ये जो एबनॉर्मल सेल्स हैं, इनका मेटाबॉलिज्म बहुत होता है, क्योंकि ना सिर्फ इनका कितना नंबर है, तो जितना ज्यादा नंबर है तो वो आप मुझे बताएं कि उनको खुराक भी तो चाहिए, तो वो बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट्स खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से इंसान वीक से वीक होता जाता है और इतना वीक हो जाता है कि उसकी डेथ हो सकती है। तो ये इस तरह हम कहते हैं डायनासोर्स, कई थियरीज है कि डायनासोर्स किस तरह एक्सटिंक्ट हुए, क्या हुआ। तो उसकी एक थ्योरी ये भी है कि डायनासोर्स बहुत बड़े थे, उन ह्यूज एनिमल्स थे, तो वो उनकी खुराक उनके लिए बहुत कम पड़ जाती थी, फिर वो एक दूसरे को खाते थे और इस तरह मतलब फाइनली वो एक्सटिंक्ट हो गए। देयर आर डिफरेंट थ्योरीज, लेकिन वन ऑफ द थ्योरी इज आल्सो दिस, बिकॉज ऑफ देयर बिग साइज they were unable to gain their food properly. तो इसी तरह जब white blood cells they increase in number और abnormal होते हैं increase in number, तो जो भी metabolic substrates हैं वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं and the person can even die of this weakness. अच्छा जी, अब हम यहाँ तक समझ आ गई आपको? जी बेटा। जी, ये आपने टाइप बताई थी ल्यूकीमिया की, एक माइलोजेनस ल्यूकीमिया बताया था और दूसरा कौन सा बताया था आपने? क्या है ये? लिम्फोसिटिक। लिम्फोसिटिक। लिम्फोसिट यानी कि ये लिम्फोसाइट की सीरीज को इफेक्ट कर रहा है और एबनॉर्मल लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जबकि माइलोजेनस का मतलब ये है कि ये ग्रेन्युलोसाइट्स और मोनोसाइट्स अगर इफेक्ट होंगे तो दैट इज नोन एज माइलोजेनस ल्यूकीमिया। ठीक है? ओके, नाउ वी कम टू ग्रेन्युलोपोएसिस। जिस तरह हमने एरिथ्रोपोएसिस किया था उसी तरह ग्रेन्युलोपोएसिस है। अब ग्रेन्युलोपोएसिस का क्या मतलब है कि ग्रेन्युलोसाइट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, ये फिगर मैंने आपको बहुत शुरू में जब ब्लड की जेनेसिस स्टार्ट की थी मैंने आपको बताया था कि ब्लड सेल कैसे बनते हैं, एंड आई टोल्ड यू दैट ऑल द cells they come from a single stem cell known as pluripotent hemopoietic stem cell. And then I also told you that this pluripotent hemopoietic stem cell is able to make its own copy, and this cell is also able to make all the cells. And these are the different lineages. For lymphocytes it is different. Why? This colony forming unit spleen, it also forms erythrocyte, it forms granulocytes, monocytes, megakaryocytes and platelets. तो इसी तरह जिस तरह हमने सॉरी बेटा एरिथ्रोपोएसिस का जिक्र किया है, उसी तरह ग्रेन्युलोपोएसिस अभी हम करते हैं और फिर हम लिम्फोपोएसिस भी करेंगे। लेकिन बात यह है कि ग्रेन्युलोपोएसिस जब हम करेंगे तो इसका मतलब है कि ग्रेन्युलोसाइट्स जिसमें मेनली आपके आ जाते हैं न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, और फिर हम मोनोसाइट्स का भी जिक्र करेंगे और लिम्फोसाइट्स का। तो उसी तरह pluripotent hemopoietic stem cell है, colony forming unit spleen है, which is giving rise to colony forming unit, granulocyte, monocyte, फिर बहुत सारी इसमें चीजें आती हैं जिसमें जिस तरह हमने रेड ब्लड सेल का किया था, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, बेसोफिलिक, एजिटोफिलिक, पॉलीक्रोमैटिक, इसी तरह हम इसको देखेंगे और ये चलता जाएगा और फाइनली granulocytes, neutrophils, eosinophils, basophils and monocytes. This was just a review, and now जिस तरह हमने stages पढ़ी थी for erythropoiesis, इसी तरह these are the stages। और जिस तरह मैंने आपको erythrocytes में बताया था
कि when the cell matures, the size decreases, nuclear cytoplasmic ratio increases, chromatin becomes condensed, nuclei become absent. तो similarly यहाँ पे भी आपको सिर्फ स्टेजेस के नाम आने चाहिए, लेकिन यही स्टेज है कि माइलोब्लास्ट बहुत बड़ा सेल होता है, प्रोमाइलोसाइट उससे छोटा हो जाता है, माइलोसाइट उससे छोटा, और इस तरह बैंड ग्रेन्युलोसाइट और फिर सेगमेंटेड मैच्योर ग्रेन्युलोसाइट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ा सेल जो आपको नजर आता है कि जी ये सेल व्हाइट ब्लड सेल बन रहा है, इट इज माइलोब्लास्ट। देन द चेंजेस आएंगी, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो का होगा, देन द सेल बिकम्स प्रोमाइलोसाइट or this is also known as myelocyte A. अच्छा, promyelocyte में you are going to see granules, but these are non-specific granules. Non-specific granules का मतलब ये है कि इन granules को देख के आप ये नहीं बता सकते कि ये आगे जाकर सेल न्यूट्रोफिल बनेगा या इओसिनोफिल बनेगा या बेसोफिल बनेगा। जबकि माइलोसाइट में या माइलोसाइट बी में कुछ स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स भी डेवलप हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उन ग्रेन्यूल्स को देख के वी कैन टेल दैट दिस सेल इज डेस्टिन्ड टू बिकम न्यूट्रोफिल, और दिस सेल इज डेस्टिन्ड टू बिकम इओसिनोफिल, और दिस सेल इज डेस्टिन्ड टू बिकम बेसोफिल। So then मेटामाइलोसाइट, इसमें स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स और बढ़ जाते हैं। देन द बैंड ग्रेन्युलोसाइट, इसको बैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियस जो है बैंड की तरह हो जाता है, अपने फाइनल शेप सोफिया अफजल, अच्छा बैंड शेप हो जाता है, और उसके बाद ये अपने न्यूक्लियाई की डिफरेंट शेप्स करता है, लेकिन फिर पहले ये बैंड शेप हो जाता है। दिस इज नोन एज बैंड ग्रेन्युलोसाइट, एंड फाइनली द मैच्योर ग्रेन्युलोसाइट that is either neutrophil, basophils or eosinophils. So these are the stages of granulopoiesis, और यहाँ पे आपको इनके नाम थोड़े याद करना है कि पहली कौन सी स्टेज है। अगर मैं पूछती हूँ बैंड ग्रेन्युलोसाइट क्या है, तो दिस इज वन ऑफ द स्टेज, एंड आफ्टर दिस the cell matures to a granulocyte, और इस सारा का एक ही प्रोसीजर है, जब ये बैंड ग्रेन्युलोसाइट के बाद ये मैच्योर ग्रेन्युलोसाइट बन जाएगा, और न्यूक्लियस की शेप की वजह से और उसके स्टेनिंग की वजह से हम कहेंगे जी ये ग्रेन्युलोसाइट न्यूट्रोफिल है, और दिस इज eosinophil, और दिस इज बेसोफिल। So these are the stages of granulopoiesis. Now these are the white blood cells, और ये आपके मैच्योर ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। न्यूट्रोफिल्स, आपने इसको देखा कि इसका थोड़ा सा पेल कलर है, आप इंशाल्लाह ताला ये लाइव अपनी स्लाइड्स देखेंगे और उसमें यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज देम। न्यूट्रोफिल्स को आपने देखा कि ये मल्टी लोब्ड है, 3 से 5 लोब्स होते हैं इसके न्यूक्लियस में, और इसके ग्रेन्यूल्स जो होते हैं दे आर वेरी फाइन। देन बेसोफिल्स, बेसोफिल्स जो है मैंने आपको बताया था कि ये जो है हीमेटॉक्सिलिन स्टेन लेता है और ये पर्पलिश स्टेन लेता है, और इसका न्यूक्लियस आपको यहाँ पे थोड़ा सा नजर आ रहा होगा, लेकिन इसके न्यूक्लियाई, इसके सॉरी ग्रेन्यूल, दे आर वेरी थिक एंड कोर्स, they are so thick and coarse and they are purplish that it seems that there is no nucleus. They are masking the nucleus. Then the eosinophils, the granules are thicker than the neutrophilic granules, but very thinner than the basophilic granules, and it is bilobed. You are seeing it is bilobed. That means it has got 2 lobes, and that is why in older books it was written spectacle shaped, ऐनक की तरह, कि जी eosinophils spectacle shaped है। Then you are seeing the lymphocytes and the monocytes.
and you are seeing that lymphocytes are smaller than the monocytes. It has almost oval or rounded nucleus, thin rim of cytoplasm, while the monocyte is a big cell and the nucleus is again like this. It's not, it is also indented, it's a big cell. तो ये आपके डिफरेंट वाइट ब्लड सेल है, और ऑस्पी में हम यूजुअली ये ब्लड सेल्स लगा के आपसे पूछते हैं इस सेल को रिकग्नाइज करो, और फिर हम पूछते हैं न्यूट्रोफिलिया की 2 कॉजेज बता दो या न्यूट्रोपीनिया की 2 कॉजेज बता दो, इयोसिनोफिल लगा देंगे, इस सेल का नाम बताओ. बड़ा क्लियर हमारा वो डायग्राम होता है, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. और फिर हम कहेंगे इयोसिनोफिलिया की 2 कॉजेज बता दो. तो इस तरह ये आपकी ऑस्पी. ठीक है, समझ आ गई है? Yes. Yes, जी ma'am. मैम. Yes, The ma'am. lifespan of WBCs is 4 to 8 hours in blood and 4 to 5 days in tissues. याद रखिए कि न्यूट्रोफिल्स और या ग्रैनुलोसाइट्स आप कह दें और मोनोसाइट्स, ये दोनों ब्लड से ट्रैवल करके चले जाते हैं टिश्यू में. ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है, मैं ग्रैनुलोसाइट्स बोल रही हूँ, इसमें ग्रैनुलोसाइट में मोनोसाइट नहीं आ रहा, लेकिन मैं मोनोसाइट का भी बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपको याद हो, बार बार आपको कह रही हूँ कि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट तकरीबन एक तरीके से काम करते हैं, तो हम इनको साथ साथ लेके चलते हैं. हालांकि मोनोसाइट इज ए ग्रैनुलोसाइट, बट देयर मेन रोल इज लाइक न्यूट्रोफिल इज फेगोसाइटोसिस. तो ग्रैनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स दोनों ब्लड में भी रहते हैं, और कितनी रहते हैं, ये देखिए कितनी कम देर रहते हैं, 4 to 8 आवर्स ब्लड रहते हैं. उसके बाद दे गो इनटू द टिश्यूज. वहां पे दे remain for 4 to 5 days and then they die. Over 100 billion neutrophils are produced per day. और उसमें सर्कुलेटिंग ब्लड में इसका 50 बिलियन होगा, और इसी तरह जो मार्जिन पे आ गए और टिश्यू में चले गए वो भी 50% है. मोनोसाइट्स they live in the blood for 10 to 20 hours and then they go to the tissues where they perform their function. So remember this, that the white blood cells, granulocytes and monocytes, they are not only present in the blood, but they also move towards the tissues. And in the tissue, they perform their function in a number of ways. Even eosinophils, basophils can pass through, and they perform their functions in different ways, which we are going to discuss in the next lecture. So, beta, we take a break for 5 minutes, and then I'm going to send you the link again. ठीक है बेटा? Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज. अल्लाह Allah हाफिज. Hafiz. तुम लोग क्यों सो रहे हो अभी तक? टिप्सी, ओरियो, क्यों सो रहे हो? उठ जाओ. शरारत नहीं कर रहे? क्या सोच रहे हो? आओ मेरे पास आओ. आ जाओ. आओ, आओ बच्चे. नहीं आ रही. They move towards the tissue. इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात ये है, जो न्यूट्रोफिल्स हैं, they when present in blood, they can directly phagocytize or
perform some other function against any invading organism which is present in blood. Plus, when it moves to the tissues, there again it is able to perform the function. ठीक होगी बात? न्यूट्रोफिल्स which दो मेन फेगोसाइट्स कौन से हैं? न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स. Neutrophils can perform their function both in the blood as well as in the tissue. They are present in the blood, they can perform their function. Then they move towards the tissue. In the tissues, they can perform their function. While the monocytes, they can't perform their function in the blood. They remain as monocytes and they are not able to perform their function of phagocytosis and others in the blood. But once it moves from the blood to the tissues, in the tissues, it is changed. Its structure is changed. Its morphology is changed. It becomes a big cell, and that cell is known as macrophage. Macro means big, phage means phagocytosis. यानी कि ये बड़ा सेल है जो फेगोसाइटोसिस कर सकता है, जो खा पी सकता है. और फिर in the tissues they can perform their functions after changing from monocyte to macrophage. So this is again, देखिए मैं आपको मुसलसल ये बता रही हूँ कि मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स जो साइड टू साइड इनके तकरीबन एक्शन, तो इनको मैं इसलिए साइड बाय साइड भी डिस्कस कर रही हूँ और अलग से हम मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. लेकिन इधर जब भी मैं आपको न्यूट्रोफिल का कोई फंक्शन बताती हूँ तो समझ लो कि वो तकरीबन मैक्रोफेज का भी ये फंक्शन है. लेकिन न्यूट्रोफिल्स आर समटाइम्स कॉल्ड मैच्योर सेल्स बिकॉज it can act both in the blood as well as in the tissue. While the monocytes are the immature phagocytes, कहते हैं इनको, क्योंकि they can't perform their function in the blood. To perform their function, they must pass from inside the blood to the tissues, where they change their morphology and become big cells. And these cells are known as macrophages, and then these macrophages they perform their functions in the tissue. Is it clear? Yes, जी. ma'am. Yes. Yes, ma'am. Now, what are the characteristics of granulocytes? Or again, you are seeing over here that in this slide I have written characteristic of granulocytes, लेकिन नीचे मैंने लिखा है neutrophils and monocytes. Monocyte is not a granulocyte, लेकिन मैं इधर again the same thing that the neutrophils and monocytes they are the main phagocytes and तकरीबन they work in the same way. कुछ changes के साथ, कुछ differences के साथ, which I am going to discuss with you. तो यहाँ पे आपको मेरी ये स्लाइड मिसगाइड ना करे कि जी ग्रेन्युलस मोनोसाइट तो ग्रेन्युलोसाइट में आता नहीं है, और मुझे लगता है कि मुझे अपनी ये स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे कुछ शहजाद और शहजादियाँ कहेंगे मैडम ग्रेन्युलोसाइट आपने खुद तो लिखा था न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी. तो मुझे लगता है मुझे स्लाइड को थोड़ा सा चेंज करना है. लेकिन at this time, at this moment, I am just trying to tell that these are the characteristics of granulocytes and monocytes. And in granulocytes, mainly the neutrophils. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो क्या मोनोसाइट ग्रेन्युलोसाइट है? No, they No, are ma'am. eight. No, No, ma'am. ma'am. हाँ ठीक है ना. लेकिन ये स्लाइड थोड़ी, मैंने कहा है ना, कुछ हमारे शहजादे शहजादियां फिर ये कह देंगे
कि जी मैडम ने कहा था मोनोसाइट्स जो है ग्रेनुलोसाइट्स हैं, उनकी स्लाइड भी पड़ी हुई है, तो यहाँ पे आपको ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया कि न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स they are present in the blood. Neutrophils can perform their function in the blood as well as in the tissues. जब ये न्यूट्रोफिल ब्लड से टिश्यू में जाते हैं, ये अपने कोई चेंज नहीं करते शेप, इनकी कोई मॉर्फोलॉजी चेंज नहीं होती, ये उसी कैपेबल होते हैं ये काम करने के, एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज मैच्योर सेल्स. While the monocytes, they can't perform their functions in the blood, but once they move towards the tissues, they become big cells, their morphology change, and they become macrophages, and then as macrophages, they can perform their functions. और यूजुअली ये जब एक दफा ब्लड से निकल के टिश्यू में आ जाते हैं, यूजुअली दे डोंट कम बैक और वहां पे परफॉर्म करते हैं फंक्शन. इनके फंक्शंस में है मार्जिनेशन, माइग्रेशन और डायापिडीसिस, then amoeboid movement, chemotaxis and phagocytosis. These are the characteristics of granulocytes, mainly the neutrophils and the monocytes. What do you mean by margination? Actually, I told you that these cells from the blood, they pass to the tissues. They are circulating in the blood, but then they are marginated towards the cell membrane or the wall of the vessel, the capillaries. ये मार्जिन पे आ जाते हैं. अगर आपको ये स्लाइड दिखाऊं, इधर मैंने आपको बताया सर्कुलेटिंग पूल में 50% है और मार्जिनल पूल भी 50% है, यानी कि ये मार्जिन पे आ जाते हैं. दिस इज नोन एज मार्जिनेशन. The vessel to the tissues, and this movement is known as डायापिडीसिस. ये माइग्रेशन हो गई. ब्लड में थे, ब्लड में सर्कुलेट कर रहे थे, ब्लड वेसल की वॉल के करीब आए कैपिलरीज के, उसको कहा गया मार्जिनेशन. उसके बाद उधर से थ्रू द पोर्स अपने को कंस्ट्रिक्ट करते हैं और स्लाइड कर जाते हैं इन द टिश्यूज, और ये हो गई उनकी माइग्रेशन फ्रॉम ब्लड टू द टिश्यूज. एंड दिस मूवमेंट इज नोन एज, this constriction and everything is known as diapedesis. Then in the tissues, they move by amoeboid movement. You have read amoeba in your FSCs or A-levels, which is a single cell organism, और वो किस तरह चलता है? By amoeboid movement. It throws its pseudopodia, it throws its cytoplasm, और फिर बाकी बॉडी उसके पीछे चली जाती है. इसको अभी हम आगे जाके अच्छी तरह डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन you must have read about amoeba in the biology. Have you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये टिश्यू में they move through amoeboid movement. Then where they move? Chemotaxis. Taxis means movement, chemo means chemical. ये कुछ खास केमिकल्स की तरफ मूव कर रहे होते हैं. बॉडी में नॉर्मल वियर टियर हो रही होती है, इन्फेक्शंस हो रही होती हैं, तो ये कुछ खास टिश्यूज की तरफ मूव कर रहे होते हैं जहां पे इनका काम होता है, और इसी वजह से इसको कीमोटैक्सिस करते हैं. ये ऐसे बिजारली नहीं फिर रहे होते कि टिश्यू में जाएं, चले जाएं, उधर चले जाएं, अपना काम शुरू कर दें, ये तो बहुत डैमेज करेंगे. ये टारगेटेड होते हैं, ये किसी खास टारगेट की तरफ जाते हैं, ये किसी खास केमिकल की तरफ मूव करते हैं और वहां जाके अपना काम करते हैं. एंड दिस इज नोन एज कीमोटैक्सिस. देन
जब वहां पहुंच जाते हैं, they do phagocytosis, that means they eat up the foreign substance, or they try to remove the worn out cells, they try to remove the abnormal cells, they try to remove the bacterial toxins or viral toxins, या वहां पे जो वियर एंड टियर हुई है उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स निकले हैं डिफरेंट न्यूट्रोफिल से, इयोसिनोफिल से, बेजोफिल से, ये उसकी तरफ मूव करते हैं एंड देन दे ट्राई टू रिमूव दोस केमिकल्स जो उनको अट्रैक्ट करते हैं, ये उनका फेगोसाइटोसिस कर लेते हैं। तो ये इसके characteristics हैं which I am going to now explain with the next slide. So these are the characteristics of granulocytes, especially the neutrophil, and the agranulocyte which is monocyte. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम ये आ गए कि ये कैसे माइग्रेट करते हैं और किस तरह मार्जिनेट करते हैं। अच्छा जी, ये मैंने इधर फिगर आपकी गाइटनी से ली है और ये माइग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स बता रहा है। मैंने बताया द फर्स्ट स्टेप्स इज दैट द सेल्स दे आर मार्जिनेटेड. That means they come to the margins of the vessel wall. And the other thing is, then after that, they migrate through the pores of the capillaries from within the blood to the tissues. Now, this is the migration of the neutrophils, and approximately in the same way, the monocytes, they also migrate from the blood to the tissues. Now here you are seeing that these are the neutrophils. मैंने आपको बताया था neutrophils multi-lobed होते हैं, 3 to 5 इनके lobes होते हैं, और जितने ज्यादा lobes होते हैं उतना ही वो old होता है। Young जो neutrophil होता है उसके 2 to 3 lobes होते हैं, while the older neutrophils has got 5 lobes. Okay, now you are seeing कि ये जा रहा है, ब्लड के अंदर फिर रहा है. नाउ इट हैज बीन मार्जिनेटेड. ये मार्जिन की तरफ आ गया. मार्जिन पे आप न्यूट्रोफिल्स के पास रिसेप्टर्स होते हैं एंड दैट रिसेप्टर is known, it belongs to the family of integrin. Integrin is a protein. Neutrophil has got receptors for the endothelial cells, and these receptors, they are from the family of integrins. And similarly, the endothelium has receptors for neutrophils, and this is lectin and ICAM1, intercellular adhesion molecule 1. इसका मतलब न्यूट्रोफिल पे रिसेप्टर है. रिसेप्टर का मतलब है कि वो रिसीव कर सकता है उसके कोई भी चीज, और वो रिसेप्टर के लिए है फॉर दीज प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द एंडोथेलियल मेम्ब्रेन. So selectins and ICAM1 are the receptors at the endothelium to attach neutrophils, and neutrophils have the receptors for the cell membrane which belong to integrin family. तो अब क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह मिल जाएंगे. ये आपने देखा कि ये अभी फिर रहे थे ब्लड में, ये इसका रिसेप्टर है, और जो मैंने आपको बताया कि इंटेग्रिन फैमिली एक प्रोटीन फैमिली है उससे रिलेटेड है. सेल मेम्ब्रेन पे सेल वॉल पे जो कैपिलरी एंडोथेलियम है उस पे एक सिलेक्टिन मॉलिक्यूल मौजूद है, और ICAM इसके अलावा भी इंटरसेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल्स बहुत से मौजूद हैं.
ये मार्जिन पे आएगा और ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, कांटेक्ट में आ जाएंगे, एंड दिस इज मार्जिनेशन। जब ये मार्जिन पे आ गए उसके बाद दे विल कंस्ट्रिक्ट एंड दे विल माइग्रेट फ्रॉम विद इन द ब्लड टू द टिश्यूज। दिस इज नोन एज डायापिडीसिस और माइग्रेशन, एंड यू आर सीइंग कि ये न्यूट्रोफिल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो थोड़ी प्लायबल है, और ये जो छोटा सा पोर साइज है इसमें इट विल ट्राई टू इन्वेड, and that portion which is present between this small diameter pore, it will be constricted, other portion will move towards the tissues, and then this final portion will also move towards the tissues, and this is known as migration. जब ये इधर आएगा again it becomes the same neutrophil जो ये blood में फिर रहा था, जो ये margin पे आया। तो दिस इज ब्लड, इसमें न्यूट्रोफिल फिल रहा है, मार्जिनेशन हुई, मार्जिनेशन में देयर इज कांटेक्ट बिटवीन द न्यूट्रोफिल एंड द एंडोथेलियल लाइनिंग। द एंडोथेलियल लाइनिंग दे कंटेन सर्टेन मॉलिक्यूल्स which are ready to receive the neutrophil. These molecules are selectins and intercellular adhesion molecules, while on the neutrophils the receptor is present which belongs to integrin family. They come in contact and there is margination, and after the margination there is diapedesis and migration, in which the neutrophil as well as monocyte, it will constrict and move towards the tissues, and this is known as migration. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And this function I have told you is mainly performed by the neutrophils and the monocytes. Neutrophils here in the blood can act, they can perform all their functions, while the monocyte can't perform its action in the blood. It marginates and then it moves towards the tissues. Okay. मैम बेटा बताइए। मैम न्यूट्रोफिल से फ्लेक्सिबल होता है जब वो डिफ्यूज करके टिश्यू के अंदर चला जाता है, उसकी शेप से वैसी रहती है। देखिए बेटा आप मुझे खुद बताएं, ये इस तरह इस साइज में ये इस छोटे से पोर से गुजर सकता है? नो मैम। तो फिर यहाँ पे इसीलिए तो यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन दिखाई है कि इसका थोड़ा सा पार्ट सूडोपोडिया की तरह अंदर जाता है, फिर वहां पे कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, फिर बाकी चीज भी बाहर आ जाती है। ठीक है? ओके मैम। हाँ देखिए ना, यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन आपको नजर आ रही है ना, ये इस तरह तो मूव नहीं कर सकता। इसकी मेम्ब्रेन इतनी प्लायबल होनी चाहिए कि जब ये वहां से पास कर रहा है तो अपना थोड़ा सा पोर्शन उसमें करे और कंस्ट्रिक्ट कर जाए, और फिर बाकी आस्ता आस्ता ये खुद आ जाए। ठीक है? यस मैम, ठीक है। और ये फिर ये टिश्यू में आ गया। दिस इज माइग्रेशन। ये जो मैंने आपको ये आपको जो आप देख रहे हैं स्लाइड, ये आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन टू यू ऑलरेडी कि किस तरह इंटरसेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल और सिलेक्टिन्स और इंटेग्रिन फैमिली ये काम करते हैं, और यही चीज मैंने यहाँ लिख दी है जो आपको मैं बता चुकी हूँ। अब ऊपर का जो ये मैंने लिखा है ये मैंने आपको भी बताया है कि क्यों मार्जिन पे आने के बाद टिश्यूज में आते हैं, क्योंकि बहुत सारे साइटोकाइन्स रिलीज हो रहे होते हैं। कोई भी सेल, देखिए बेटा ये सारे साइटोकाइन्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये आपके बॉडी के सेल्स में होते हैं, न्यूट्रोफिल में होते हैं, इओसिनोफिल्स में होते हैं, बेसोफिल्स में होते हैं। वियर एंड टियर हो रही है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ foreign substances, they are present outside, they continuously are entering our body through the nose, through the mouth, and all the wear and normal wear and tear is going out. तो जो भी ना सिर्फ ये इन्वेडर्स को खत्म करते हैं, बल्कि जो नॉर्मल वियर एंड टीयर होती है, वोर्न आउट सेल्स होते हैं, ये उनको भी खत्म करते हैं।
और इसी वजह से ये मूव करते हैं। इन्वेजन इज कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन्स, other biochemical products produced by the inflamed tissue that initiate the falling reaction. तो ये वही चीज जो मैंने आपको बताई है, तो ये उस तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये दो, पहला और दूसरा पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट रीड द स्लाइड ताकि यू शुड बी क्लियर। ठीक है। इसके बाद जब मूव कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं टू द टिश्यू, तो देन दे मूव टूवर्ड्स द इंजर्ड टिश्यू। अगेन यहां पे मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूं, इंजर्ड टिश्यू ये किसी फॉरेन सब्सटेंस से भी हो सकता है, ये किसी बैक्टीरिया से भी हो सकता है, ये किसी वायरस से भी हो सकता है। लेकिन जो पुराने न्यूट्रोफिल्स पड़े हैं या जो पुराने इयोसिनोफिल्स पड़े हैं, जो कुछ कभी आरबीसी अंदर आ गए हैं, नॉर्मली जो हो रहा होता है वो उनको भी तो इसने क्लियर करना होता है ना। व्हाइट सेल का तो काम ही है कि उसको कोई फॉरेन सब्सटेंस मिले, उसको कोई बॉडी का अपना इंजर्ड टिश्यू मिले, उसको कोई पुराना बुढ़ा अपना न्यूट्रोफिल मिले, वो सब उसको क्लियर करने की कोशिश करेगा। तो फिर क्या होगा कि ये सेल्स उधर से मूव करेंगे टूवर्ड्स द एबनॉर्मल टिश्यू। मूवमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स, और यहां पे आप उसको मैक्रोफेज भी कर लें, ये टूवर्ड्स द कीमोटैक्टिक सोर्स, ये सोर्स है, ये इसकी तरफ मूव करेंगे। ये नॉर्मल टिश्यू की तरफ मूव नहीं करेंगे, ये इसकी तरफ मूव करेंगे जहां पे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स पड़े हुए हैं, कोई बुढ़ा आरबीसी पड़ा हुआ है, कोई और डब्ल्यूबीसी पड़ा हुआ है, कोई प्लेटलेट्स पड़े हुए हैं, कोई सब्सटेंस बैक्टीरिया पड़ा हुआ है, कोई वायरस पड़ा हुआ है, ये इसकी तरफ मूव करेंगे, नॉर्मल की तरफ मूव नहीं करेंगे। अब ये नॉर्मल की तरफ क्यों नहीं मूव करेंगे? बिकॉज नॉर्मल टिश्यू इज स्मूथ, और स्मूथ टिश्यू फेगोसाइटोज नहीं होता, वो उसको पहचान लेते हैं। दूसरी बात ये है, नॉर्मल टिश्यूज दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, उनके ऊपर एक प्रोटीन लेयर होती है जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, और न्यूट्रोफिल्स दे आर ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज्ड, या मैक्रोफेजेस आर नेगेटिवली चार्ज्ड, देयरफॉर दे रिपेल ईच अदर। ना स्मूथ पे आएंगे बिकॉज उस पे एक बड़ी प्रोटेक्टिव कोटिंग है, ना ये नॉर्मल टिश्यू पे आएंगे क्योंकि प्रोटीन कोट है जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, और न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स या मैक्रोफेजेस भी नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो ये उसको रिपेल करेंगे। ये उसी टिश्यू पे आएंगे जिसकी स्मूथ कोट रिमूव हो गई है, या वो डेड हो रहा है और उसकी प्रोटीन लेयर खत्म हो गई है, तो न्यूट्रोफिल्स उसको आके उधर, द मोनोसाइट मैक्रोफेज उधर आके उसको खाए पिएंगे। तो कौन से डिफरेंट कीमोटैक्टिक प्रोडक्ट्स हैं जिनके तरफ ये लोग जाते हैं? ये जी कायनात महमूद आप इस वक्त आई हैं। अच्छा चले, दीज कीमोटैक्टिक प्रोडक्ट्स आर, अभी मैं आपको कई दफा ये चीज एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बोल चुकी हूँ, they are bacterial and viral toxins. They can be degenerative product of inflamed tissue. They can be several reaction products of complement system. हम complement system in detail पढ़ेंगे। complement system एक group of proteins है जो हमें natural immunity देता है, और कोई भी worn out cell है, dead cell है, तो उसको भी खत्म करने के लिए आ जाता है। तो दिस इज रिएक्शन प्रोडक्ट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। देन जब इन्फ्लेमेशन होती है, वी आर गोइंग टू स्टडी इन इन्फ्लेमेशन इन डिटेल, तो ना सिर्फ सेल्स आते हैं बल्कि प्लाज्मा भी
इन्फ्लेम टिश्यू में आ जाता है और वहां पे उसके साथ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी आ जाते हैं. तो several reaction products caused by plasma clotting in the inflamed tissue. Then tumor necrosis factor, interleukin-1, interleukin-6, etc. These are the substances, these are the cytokines which are present in the neutrophil, which are present in the macrophage. तो जब ये अपना काम करते हैं तो ये चीजें रिलीज करते हैं. इनका काम क्या होता है कि ये डेड worn आउट फॉरेन सब्सटेंस को रिमूव करे. लेकिन यही वो सब्सटेंसेस हैं जो वहां पे फीवर भी कर देते हैं इंसान को और ऐसे प्रोडक्ट्स भी रिलीज करते हैं जिससे फीवर के दौरान इंसान के जिस्म में दर्द होता है. तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो न्यूट्रोफिल्स और ये सारी चीजें हैं ये आपके नॉर्मल टिश्यूज को क्यों नहीं इन्वेड करती. तो आपने बताना है कि नॉर्मल टिश्यू स्मूथ होता है, उसके साथ ये अटैच नहीं हो सकते. दूसरा, उनके ऊपर एक प्रोटीन कोट होती है which is negatively charged, and these phagocytes, mainly the neutrophils and the monocyte macrophage, they are also negatively charged, so they repel. ठीक है. फिर आपसे पूछा जाएगा कि जी कीमोटैक्टिक प्रोडक्ट्स क्या हैं. तो यू कैन जस्ट नेम देम दैट देयर आर नंबर ऑफ कीमोटैक्टिक प्रोडक्ट्स जिसमें फॉरेन सब्सटेंस भी हो सकते हैं, कोई डेड बैक्टीरिया भी हो सकता है, बैक्टीरिया का टॉक्सिन भी हो सकता है, कोई वायरस भी हो सकता है, कोई वायरस का टॉक्सिन भी हो सकता है. इसके अलावा जो न्यूट्रोफिल्स अपने ही साथियों को फेगोसाइटोस कर रहे होते हैं उसमें से भी सब्सटेंसेस निकलते हैं. ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर निकलता है, साइटोकाइन है, इंटरल्यूकिन्स हैं और इसके अलावा प्लाज्मा बाहर आता है, वहां पे क्लॉटिंग हो रही होती है, फिर उस क्लॉटिंग को भी रिमूव करना होता है. तो नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर which due to which the neutrophils and monocytes they move from within the blood to the tissues. These are the chemotactic products. Now this chemotaxis ये very effective. कोई भी आपकी बॉडी का टिश्यू 50 माइक्रोमीटर से ब्लड वेसल से दूर नहीं है. आपको पता है कि हमारे बॉडी में एक पूरा नेटवर्क है वेसल्स का जो एओर्टा से स्टार्ट होकर कैपिलरीज और वेन्यूल्स और वेन्स और इंफीरियर वेना केवा तक जाता है. ये जो माइग्रेशन हो रही होती है ये मेनली कैपिलरी के एंड पे होती है और कोई भी टिश्यू इतना दूर नहीं है कैपिलरीज से कि वहां पे कोई प्रॉब्लम हो और कैपिलरीज से वाइट ब्लड सेल्स स्पेशली द मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल उधर मूव ना करें. 50 माइक्रोमीटर से कोई टिश्यू दूर नहीं है किसी ब्लड वेसल से. और ये जो कीमोटैक्सिस है इट इज इफेक्टिव फॉर 100 माइक्रोमीटर. तो ये हमारे टिश्यूज हमारे सेल्स ये वहां मूव कर जाते हैं. इज इट क्लियर टू यू टिल नाउ? Yes, ma'am. तो ये आपका जब आप इंशाअल्लाह ये हम यहाँ तक एंड करेंगे इस पूरे टॉपिक को तो यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट दैट. अबाउट द साइटोकाइंस आई रिकमेंड यू कि प्लीज आप जाके आज थोड़ा सा साइटोकाइंस को पढ़ें कि व्हाट आर साइटोकाइंस. तो आपको पता चलेगा. मैंने आपको बताया हुआ है एरिथ्रोपोइटिन इज अ साइटोकाइन. ग्रेन्युलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी फॉर्मिंग substance is a cytokines. Interleukins are cytokines. Tumor necrosis factor is a cytokine. These all cytokines are present in the neutrophils, monocytes. You are also going to see that they are present in the eosinophils. They are present in the basophils, in number of cells. और ये सब एक्चुअली काम क्या करते हैं? ये एक्चुअली ये काम करते हैं कि कहीं से कोई foreign substance या abnormal cell, cancer cell is also an abnormal cell, फिर
जो हमारे नॉर्मल बॉडी के सेल्स होते हैं, जब वो वोर्न आउट हो जाते हैं या ओल्ड हो जाते हैं, उनमें बड़ी डीएनए में चेंजेस आती हैं। तो ये हमारे जो साइटोकाइंस है, ये उसको भी पहचान लेते हैं, ये उनको भी खत्म करने की कोशिश करते हैं। यानी कि आपके अपने साथी जो होते हैं, वो जब आप पे अटैक कर देते हैं, क्योंकि अब वो सेल उनको एबनॉर्मल नजर आ रहा होता है। तो ये साइटोकाइंस इन तमाम किस्म के सेल से निकल के कोशिश कर रहे होते हैं कि वो वोर्न आउट सेल, टूटे फूटे सेल, ओल्ड सेल्स या इन्वेडिंग कोई सब्सटेंस, उसको रिमूव करें। और उसको रिमूव करने के लिए वो इन्फ्लेमेशन करते हैं। वो जो हम देखेंगे कि वो इन्फ्लेमेशन में क्या करते हैं, और एक्चुअली इन्फ्लेमेशन ही उन चीजों को रिमूव करने के लिए होती है। लेकिन ये इन्फ्लेमेशन और इनका एक्शन कई दफा इतना ज्यादा होता है कि ना ये सिर्फ एबनॉर्मल चीजों को रिमूव करते हैं, बल्कि साइड पे जो नॉर्मल टिश्यू होता है उसको भी डैमेज कर देते हैं। एंड देन दिस इज नोन एज इन्फ्लेमेशन। ये अभी आपके एक इंटरेस्ट के लिए टाइम भी कम रह गया। नेक्स्ट स्लाइड हम अगली दफा डिस्कस करेंगे। ये जो इवन ये कोविड है, जब वायरस एंटर होता है तो एक आपने लफ्ज पढ़ा होगा, आज जाके जरूर थोड़ा सा इसको आप लोग नेट पे बहुत सारी चीजें देखते हैं, ये भी देखें, साइटोकाइन स्टॉर्म। यूजुअली जो कोविड की वजह से डेथ्स हो भी रही होती हैं, उसमें साइटोकाइन स्टॉर्म का बड़ा हिस्सा होता है कि वायरस आया, इम्यून सिस्टम ने इतने साइटोकाइंस निकाले कि ना सिर्फ वो वायरस को डैमेज कर रहे हैं, बल्कि इर्द गिर्द के सारे लंग टिश्यू को भी डैमेज कर देते हैं। और अगर रिवर्सिबल चेंजेस हैं तो ओके, इरिवर्सिबल चेंजेस हैं तो द पर्सन डाइज या पर्सन में परमानेंट डैमेज होता है। तो मेरी आप लोगों से आज ये रिक्वेस्ट है कि जरा जाके आपको, जब आप साइटोकाइंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ओ जी ये तो मैक्रोफेज से निकल रहा है, ओ जी वो तो न्यूट्रोफिल से निकल रहा है, और ये क्या गड़बड़ें कर रहा है। ये इतनी ज्यादा गड़बड़ें करता है क्योंकि आपका इम्यून रिएक्शन किस तरह आता है, ये एक्चुअली अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी में सिस्टम रखा हुआ है जो मेंटेन कर रहा है कि कोई चीज आई आपकी बॉडी के, आपने कोई एंटीबायोटिक नहीं ली, आपने कोई एंटीवायरल नहीं ली, अल्लाह ताला ने सेल्स में वो चीजें रखी हैं जो उसको खत्म कर सकती हैं। लेकिन अगर उनका रिएक्शन बहुत सीवियर हो जाए तो ना सिर्फ वो उनको खत्म करेगा, बल्कि इर्द गिर्द के नॉर्मल टिश्यू को भी डैमेज कर देगा, और इतना बुरा तरह डैमेज कई दफा कर देगा कि द पर्सन इज अनएबल टू सर्वाइव। तो आप लोग आज जरूर, वेरी इंटरेस्टिंग, आप लोगों को कोई एक दफा शायद समझ ना आए, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि साइटोकाइंस क्या करते हैं। तो एक बड़ा अच्छा आपने जाके देखना है कि साइटोकाइंस क्या है, फिर आपने देखना है कि साइटोकाइन स्टॉर्म क्या है। फिर कोविड में पढ़िएगा साइटोकाइन स्टॉर्म इन कोविड। उसमें ये होता है कि इतने साइटोकाइंस उसको मारने के लिए निकलते हैं कि वो नॉर्मल लंग टिश्यू को भी डैमेज कर देते हैं। और ज्यादातर वो ये कहते हैं कि जो डेथ्स होती हैं वो उसी साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से होती हैं, कि बिल्कुल आपका बॉडी इतनी बुरी तरह रिएक्ट करती है उसको कि वो नॉट ओनली द एबनॉर्मल टिश्यूज बट द नॉर्मल टिश्यूज दे आल्सो आर डिस्ट्रॉयड। तो आई एक्सपेक्ट कि आज आप जाके जरूर अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़िएगा। पढ़ोगे ना? यस मैम। जी मैम। ओके, चलो एडमिट हो गई है नेहा भट्ट जो लास्ट मिनट पे आई है, ठीक है, ये मैंने एडमिट कर लिया उसको। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज इंशाल्लाह ताला।